آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 79ویں سورہ ہے، لیکن باصحاب نزول اس کا شمار 35 نمبر پر ہے۔ سورہ نازعات مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں، 181 کلمات اور 791 حروف۔ اس کا اصل مضمون آخرت اور قیامت سے متعلق ہے۔ ربط و مناسبت بظاہر سورہ نازعات کا ربط سورۃ المرسلات سے زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سورہ کی ابتدا بھی 5 قسموں سے ہوئی اور اس کی ابتدا بھی 5 قسموں ہی سے ہوئی، اور اس سورۃ النازعات کی ابتدا بھی 5 قسموں ہی سے ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ انداز ابتدا پورے قرآن مقدس میں صرف 5 صورتوں سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات، سورہ عادیات کا ہے۔ اول میں 3 صفات ہیں، دوسری میں 4 اور باقی تینوں میں 5 ہیں۔ سورہ عادیات چھوٹی صورت ہے، پھر اس میں 2 صفات صیغہ فعل کے ساتھ مذکور ہیں، اس لیے یہ مناسبت میں کم ہے، لیکن مرسلات و نازعات میں بہت قوی ربط اور ہر طرح مناسبت ہے۔ پھر غور کیا جائے تو سورہ نبا اور سورہ نازعات میں بھی کلی جزوی طور پر نہایت ربط و مناسبت ہے۔ مثلا سورہ نبا میں بھی سورہ مرسلات کی طرح احوال قیامت کی شرح و تفصیل تھی، بلکہ سورہ نبا گویا سورہ مرسلات کی شرح تھی۔ سورۃ النبا میں قیامت کے بارے میں کفار کے انکار و استہزاء اور سوال کا جواب مذکور تھا۔ اس سورہ نازعات میں قیامت کے مبادی کو بانداز قسم بیان فرما کر قیامت اور اس جہاں بقا کی اجمالی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مناسبت کی مزید تفصیل فتح العزیز میں دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، غرقاً غرق ہو کر، ڈوب کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ و ریشہ میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ واضح رہے کہ نہ ذکیل ہوئی میں نے کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچنا ہے۔ والناشطات اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا آسانی سے نکالنا، نشط العقدۃ بمعنی گرہ کو مضبوط کیا، اور النشوۃ بمعنی آسانی سے کھل جانے والی گرہ۔ گویا نشط کا معنی گرہ لگانا بھی ہے اور گرہ کھولنا بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو بنایا یا پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا تھا۔ موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے، یعنی والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح اتنی آسانی سے نکالتے ہیں کہ جیسے گرہ کھول دی گئی ہو۔ چمڑے کی مشک میں پانی ہے، اس کو کھول دو، غبارے میں ہوا ہے، اس کا منہ کھول دو، جس طرح ہوا نکلتی ہے اسی طرح تیزی سے مسلمان کی روح نکل جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، کافر کی روح مشکل سے نکلتی ہے، بظاہر اگر نظر آئے بھی کہ کافر جلدی مر گیا تو بظاہر کا حکم اور ہوتا ہے، اندر کی تکلیف اور ہوتی ہے۔ مسلمان کو بظاہر تکلیف محسوس ہو بھی تو پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی کافر کے لیے موت کے بعد برزخ کا عذاب مستحضر کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر کافر کی روح کا جسم سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی برزخ کے انعامات سامنے کر دیتے ہیں تو روح دوڑ کر وہاں جاتی ہے۔ اس لیے جو شہید ہے
उसकी रूह आम इंसान की बनिस्बत बहुत आसानी से निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शहादत की मौत अता फरमाए। वस्साबिहाती, और जो तैरने वाले हैं, सबहन, तेज़ी से तैरना। साबका मैंने किसी चीज़ का पानी या हवा में तैरना और तेज़ रफ्तारी से गुजर जाना। और सब्बाह मैंने माहिर तैराक, यानी वो फरिश्ता जो रूह को निकाल कर ज़मीन से आसमान की तरफ इस कदर सुरत व सहूलत से चलते हैं गोया बेरोक टोक हवा में तैरते जा रहे हैं। यानी वस्साबिहाती सबहा, और कसम है उन मलाइका की जो तैरते हैं। तैरने का माना है कि जिस तरह ज़मीन है, इसमें दरख्त हैं, पहाड़ हैं, रुकावटें हैं, और पानी में रुकावटें नहीं हैं, कश्तियाँ बगैर रुकावट के भागती रहती हैं। इसलिए फरमाया कि मलाइका अल्लाह के हुक्मों को लेकर तैरते हैं, यानी उनको भी दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती। फस्साबिकाती, फिर जो सबकत करने वाले हैं, सबका, सबकत करना। फिर इन अरवा के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला जल्ला शान की तरफ से जैसा हुक्म सादर होता है, उसकी बजा आवरी के लिए एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं। फल मुदब्बिराती, फिर जो तदबीर करने वाले हैं, अमरा, किसी काम की, यानी अल्लाह तबारक व ताला जो काम उनके सपोर्ट करता है वो उसकी तदबीर करते हैं। असल मुदब्बर तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ही है, लेकिन जब अल्लाह ताला अपनी हिकमत बालगा के तहत फरिश्तों के ज़रिए से काम करवाता है तो उन्हें भी मुदब्बर कह दिया जाता है। एतबार से पाँचों सिफ़ात फरिश्तों की हैं और इन फरिश्तों की अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने कसम खाई है। फिर अरवा के मुतालिक फरिश्तों को जो हुक्म मिलता है, खा वो हुक्म सवाब का हो या आज़ाब का, इस पर फ़ौरन अमल दरामद की तदबीर करते हैं। और अगर अल्फाज की अमूमियत का लिहाज रखा जाए तो इनसे मुराद वो तमाम फरिश्ते हैं जो तदबीर उमूर कायनात पर अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हैं। जिक्र करदा पांच किस्म के फरिश्तों और उनके कारनामों का जिक्र करके अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने कुफार मक्का पर रोज़े आखिरत के क़याम पर हुज्जत कायम फरमाई कि जो फरिश्ते तुम्हारी रग रग से रूह निकाल कर तुम्हें मौत से दो चार करते हैं और तुम्हारी रूह को अपने कब्ज़ा में ले लेते हैं, वो किसी वक्त यही रूह तुम्हारे जिस्म में दाखिल भी कर सकते हैं। वाज़ेह है कि कुफ़ार मक्का फरिश्तों की हस्ती और उनके कारनामों के कायल थे। उनकी बुनियादी गलती ये थी कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की बेटियां समझते थे, फलिहाजा उन्हें भी तदबीर अमूर कायनात में अल्लाह का शरीक समझते थे, अगरचे मुख्तार कुल अल्लाह ही को समझते थे, जबकि हकीकत ये है फरिश्ते ना अल्लाह की बेटियां हैं और ना अल्लाह के शरीक, बल्कि वो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की मखलूक और उसके फर्मा बरदार बंदे हैं और वो अल्लाह के हुक्म से सरताबी कर ही नहीं सकते। तदबीर उमूर में उनके लिए अपने इख्तियार को ज़र्रा भर भी अमल दखल नहीं। बाद मुफस्सिरीन का कौल है कि नाज़ियात से सितारे मुराद हैं। मकसद होगा वो सितारे जो अपने आप को खींच कर लाते हैं, डूब कर, इशारा होगा कुदरत की तरफ कि जो ज़ात सितारों को डूबने के बाद दोबारा रोशन तुलू कर सकती है, तुम्हें भी दोबारा जिंदा कर सकती है। और नाशितात से मुराद भी सितारे होंगे, माना होगा वो सितारे जो जाने वाले, चलने वाले हैं। अस्साबिहात का मकसद होगा वो सितारे जो अपने दायरा में तैरने वाले हैं। फस्साबिकात का मकसद होगा वो सितारे जो एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले हैं। फलमुदब्बिरात, ये फरिश्तों की सिफत है, सितारों की नहीं। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि गैरुल्लाह की कसम खाना तो जायज़ नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ खुद गैरुल्लाह की कसम खाई है, इसकी क्या वजह है? इसका जवाब ये है कि यह हुक्म मखलूक के लिए है। खुद अल्लाह ताला जल्ला शानु की ज़ात किसी हुक्म और कानून की पाबंद नहीं। मखलूक को गैरुल्लाह की कसम खाने से इसलिए मना फरमाया कि कहीं तुम खाने वाला उस चीज़ को ऐसा मुअज़्ज़म न समझे, ऐसा मोतबर न समझे जैसा कि हक ताला जल्ला शानु को मुअज़्ज़म समझता है। और अल्लाह ताला जल्ला शानु में ये एहतमाल ही नहीं कि वो किसी मखलूक को मुअज़्ज़म समझे। इन आयात से मलाइका का रूह को कब्ज़ करना, इंतज़ाम जन्नत, जहन्नम वगैरह और अजाब सवाब का पहुँचाना साबित हो गया। और अजाब सवाब का पहुँचाना साबित हो गया। यह सवाब व अजाब कब्र का बरज़ख में होगा, हशर का अजाब सवाब इसके बाद है। अहादीस सही में इसकी तफसील ज़िक्र है।
यौमा जिस दिन तारजुफु कांपेगी, अर्राजिफा कांपने वाली, ततबउहा पीछे आएगी उसके, अर्रादिफा पीछे आने वाली। आयत नंबर 6 और नंबर 7 के दो मतलब बयान किए गए हैं। एक ये कि नफ़्ख़ा सूर अव्वल के वक्त ज़मीन कांपने लगेगी, फिर इसे लगातार ज़लज़ला के मज़ीद झटके पड़ने लगेंगे। दूसरा ये कि रादिफ़ से ज़लज़ला की बजाय नफ़्ख़ा सूर मुराद लिया जाए, यानी पहले नफ़्ख़ा सूर के नतीजे में ज़मीन कांपने लगेगी, फिर उसके बाद जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो तमाम मरे हुए लोग जिंदा होकर कब्रों से बाहर निकल आएंगे। या अल्लाह हमें वो दिल दिमाग अता फरमा दें कि हम इन कुरानी नसीहत से इबरत हासिल करने वाले हों, और हम अल्लाह और उसके रसूल पाक के अहकामात को दिलो जान से मानने वाले और उन पर यकीन रखने वाले हों। काफरों और मग़ज़ूब कौमों की इस खसलत से कि वो अपने नबी की नसीहतों का कोई असर न लेते थे, अल्लाह ताला हमको और तमाम उम्मत मुस्लिम को महफूज फरमाएँ और हमको हर तरह की नाफरमानी से बचाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।